بھائی کے ہاتھوں بہن کے قتل کی ہولناک ویڈیو سامنے آ گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں 22 سال کی ماریا کو منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا گیا۔ قتل کے وقت کمرے میں باپ سمیت گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ ملزم باپ بیٹا گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے قبر کشائی کر کے لاش کے نمونے لاہور بھجوا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان میں بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل۔ کوئٹہ، سبی سمیت مختلف علاقوں میں بارش، ہرنائی اور گردونواں میں بادل برسے۔ ندی نالوں میں طغیانی، مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث راستہ بند۔ لاہور میں صبح سویرے ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا امکان۔ دہشت گردی سے اس وقت تک لڑیں گے جب تک پاکستان، عوام اور ان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ملک دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں کہا، یقینی بنائیں گے کہ خوشحالی میں کردار ادا کرنے والا ہر غیر ملکی خصوصاً چینی شہری محفوظ رہے۔ قوم نے 2 دہائیوں سے ثابت قدمی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، مخالفین کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان کے دشمنوں نے ایک بار پھر ریاست اور عوام کے حوصلے کو کم سمجھا ہے۔ آرمی چیف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، امن و امان اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بارڈر کی صورتحال میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا ہماری کوششوں کے باوجود کابل کوئی پیش رفت نہیں کر رہا۔ پاک افغان بارڈر پر بین الاقوامی قوانین اور روایت نافذ کرنا ہوں گے۔ دہشت گردوں کی ٹریفکنگ ختم کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی سازش ناکام ہوگی۔ تمام اکائیاں وفاق کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ ایسے واقعات کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے گی۔ نیول بیس پر دہشت گرد حملوں میں شہید سپاہی نعمان فرید سپرد خاک۔ شہید سپاہی کو فوجی احساس کے ساتھ مظفر گڑھ میں سپرد خاک کیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران اور جوانوں، عزیز و اقارب اور علاقے کی شرکت۔ عوام سڑکوں پر آئیں گے تو حکومت خود گر جائے گی۔ ہمارا احتجاج الیکشن کو کھیل بنانے والوں کے خلاف ہے۔ تحریک کا فوکس وہ قوت ہوگی جس نے نتائج تبدیل کیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، یہ حکومت ایسے نتائج پر بنی ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ PTI کا مجھ سے رابطہ نہیں۔ جرم کوئی اور کرتا ہے، ذمہ داری سیاستدان اپنے سر لے لیتے ہیں۔ ویڈیو بیان میں مولانا نے کہا، رمضان کے بعد احتجاج ہوگا، عوامی اسمبلیاں لگائیں گے۔ پہلی مرتبہ ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی آواز اٹھائی۔ ججوں نے دھونس، دھمکیوں اور مداخلت کی شکایت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی پسلیوں میں فریکچر کی تصدیق، CT اسکین رپورٹ ڈاکٹرز کو موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے چودھری پرویز الہی کو سانس لینے میں بھی مشکل کا سامنا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا پیمز ہسپتال اسلام آباد میں علاج جاری ہے۔ بنی گالہ میں بشرا بی بی کی زندگی کو شدید خطرات ہیں۔ بشرا بی بی کو کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا بنی گالہ کے انتظام خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، بشرا بی بی اپنے بیڈ روم میں قید ہیں تو جان کو خطرہ کیسے ہو گیا؟ بشرا بی بی مختلف کیسوں میں مجرم ڈکلیئر ہو چکی، خوش قسمت ہیں، جیل کے بجائے بیڈ روم میں شہد کھا کر سزا کاٹ رہی ہیں۔ کیس عدالتوں میں چل رہی ہیں، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت 7 سینیٹرز پنجاب سے بلا مقابلہ منتخب ہونے والوں میں پرویز رشید، آہت چیمہ، طلال چودھری، ناصر محمود اور سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ شامل ہیں۔ بلوچستان سے سینٹ کے لیے خواتین کی 2 نشستوں پر نون لیگ کی راحت جمالی اور پیپلز پارٹی کی حسنہ بی بی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب۔
7 में से 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। हमारी तो एक सीट बनती थी, दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे अपने शहरी सिंध से हमारे पास, क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। एमक्यूएम का सेनेट इंतखाबात में फैसल वाडा को सपोर्ट करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सेनेट में हमारी एक सीट बनती थी, सिंध में बैलेंस कायम करने के लिए फैसल वाडा की हिमायत की। फैसल वाडा को पीपल्स पार्टी की भी हिमायत मिली है, उन्हें एमक्यूएम में शमूलियत की दावत नहीं दी। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद अमेरिका की तरजीहात में शामिल है। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमेरिका के ताउन से पाकिस्तान में 4000 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा की जा रही है। अमेरिकी प्रोजेक्ट से लाखों घरों में बिजली फराहम हो रही है। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान का ग्रीन अलायंस है, जिसके जरिए आबी वसाइल, स्मार्ट ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई में मुश्तरका ताउन जारी है। नए IMF प्रोग्राम से पहले PIA की निजकारी का फैसला। UAE, सऊदी अरब और कतर की PIA की खरीदारी में दिलचस्पी। खलीजी मुल्कों के हुकाम ने हुकूमती सतह पर राबते तेज कर दिए। सिविल एविएशन ज़राए का कहना है, PIA को सबसे ज़्यादा बोली देने वाली कंपनी के हवाले किया जाएगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज़। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। FBR ने मुलाजमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को चीफ जस्टिस से होने वाली मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ज़राए का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस से टैक्सों से मुताल्लिक केसेस के जल्द फैसलों की दरख्वास्त करेंगे। खुसूसी ट्रिब्यूनल या बेंच कायम करने की भी दरख्वास्त की जाएगी। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास हतमी न हो सका। फुल कोर्ट इजलास आज दोबारा होने का इम्कान। बार एसोसिएशन जजेस की हिमायत में आ गई। अदालती अमूर में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। इल्ज़ामात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामी में कहा, ऐसा अमल जो अदालती अमूर और जजेस की ज़ाती ज़िंदगियों में मुदाखलत के मुतरादिफ हो, काबिल मजम्मत है। इस्लामाबाद बार कौंसिल, बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामी में कहा, मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। जजों के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आए। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। दरखास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने दरखास्त में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत डिज़ाइन इक़दाम लगता है। अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद कमज़ोर करने की कोशिश की गई। खत में उमूमी नौयत के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव के PTI मुकदमों पर असरअंदाज होने का तासुर दिया गया। साबित होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई बार PTI को रिलीफ दिया। किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से माजरत कर लेता है। PTI कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुकी। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। PTI का जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। वकला से इल्तिजा है अदलिया की आज़ादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब ने कहा, जजेस का खत इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। वाज़ेह हो गया, निशाना सिर्फ बानी PTI थे। चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी खतरा है। दुश्मन दहशतगर्दी करके पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहता है।
पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद बदएतमादी पैदा करना है। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वसाइल को बरूए-कार लाते हुए मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। इजलास की शुरका ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया। सरहद पार दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। सफ़ीर से चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। नादरा ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर डेटा लीक्स में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 8 से ज़ायद अफसरान मुअत्तल। चार्जशीट थमा दी गई। नादरा तर्जुमान का कहना है JIT सिफारिशात की रोशनी में इंज़बाती कार्रवाई शुरू कर दी है। डेटा प्राइवेसी और अदालती नौयत की कार्रवाई के बायस इनफरादी नाम जारी नहीं कर सकते। दहशतगर्द इसराइल को आलमी कवानीन की परवाह न करारदादों की फिक्र। गजा में जुल्म का बाजार गर्म। 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। रफा में बेघर फलस्तीनी इसराइली फौज के निशाने पर पनाह गुसीन कैंपों पर बम बरसाए जा रहे हैं। खान यूनिस में अस्पतालों का मुहासरा जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,490 हो गई, जिनमें से 13,750 बच्चे और 10,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराने के इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ICC के वफ्द ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी के स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम इवेंट से पहले हो जाएगा। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फिर उम्मीदवार बन गए। ज़राए के मुताबिक फिटनेस कैंप ज्वाइन करने से पहले बाबर आजम का बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान। PCB ओहदेदारों ने बाबर आजम से राब्ता किया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था। कप्तान तब्दील करने की खबरें फिर ज़ेरे गर्द है। शाहिद आफरीदी ने दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत कर दी। कहा, शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। तब्दीली की बातें सामने आने से लगता है कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था, या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर पाक भारत टेस्ट की मेजबानी की पेशकश। चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, पाक भारत क्रिकेट के लिए अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस 2007 से टेस्ट सीरीज नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले का सबको इंतजार है। ताजिकिस्तान में फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के दौरान ब्लैकआउट। बिजली बंद होने के बाद सऊदी अरब और मेजबान टीम का मैच 6 मिनट तक मुअत्तल रहा। मौके पर तमाशाई पीछे न रहे। मोबाइल फोन्स की रोशनी से समा बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।